لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں اسامہ بن عبید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ یہ اسٹیٹ کریٹ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک انارکی ہوتی ہے، تو اس ہابسن اسٹیٹ کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ہوش کے ناخن لو، میرا تو کچھ نہیں جانا، میں تو صرف ایک غور بات سنا بھی کرنا، سوال میں اتنی دیر پاس آتا ہوں۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کے پاس دونوں فریقین کے پاس، جیسے ابھی بھائی بتا رہے ہیں کہ جی ہم تو یہی کریں گے جو کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ولفل obstruction۔ ولفل obstruction کے کانسیکوینسز، آپ ولفلی اپنا اوتھ بریچ کر رہے ہیں۔ عارف ملک صاحب، وہاں تو صرف ایک alleged مس اسٹیٹمنٹ کی کہانی تھی، یہاں پر ولفلی وائلیشن آف اوتھ کی کہانی ہے۔ جی گور آپ نے کافی آئینی تشریح کی، آئینی آرٹیکل کافی آپ نے اس پر استعمال کیا سارے دوستوں کو، جو آپ نے آئین کے آرٹیکل 69 کی بات کی جس کو سیف گارڈ آرٹیکل اور پارلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک طرف آپ نے یہ بات کی 69 آرٹیکل کی، دوسری طرف آپ کے دور حکومت میں آئینی بینچ بھی بنا دیا گیا۔ اس والے سے آپ نے آئینی بینچ کی تشریح جی گور صاحب اس پہ تو میری رائے سے آپ واقف ہیں، میں کہتا ہوں بڑی دیر سے بنائے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمان کی جو فیصلہ تھا کہ وہ جو ایک بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ میں جو ایک غلطی ہو گئی تھی اس کو درست کریں، وہ پارلیمان نے بہت تاخیر کے ساتھ کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نو بڈی کین بی جج آف دیئر اون کاز، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کا جو اس کے عام لیٹیگنٹ ہیں ان کا حق ہے کہ ان کے مقدمات بھی سنے جائیں، اور آئینی مباحث کے اندر وہ فیصلے کہیں وہیں نہ پڑے رہ جائیں اور لاکھوں کی تعداد میں نہ پڑے رہ جائیں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے کہا گیا کہ اگر ولفل طور پر چیزیں روکی جائیں گی تو اس کے خلاف ایکشن ضرور لیا جائے گا۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ماضی کی کچھ غلطیوں کے نتائج بھگتنا پڑے ہیں، اپوزیشن آئے اور اسے ختم کرتے ہیں۔ 62-63 آئین کے آرٹیکل کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن آئے تو اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا معاملہ، حکومتی اراکین نے اپوزیشن کے خلاف تحریک استحقاق جمع کرا دی۔ تحریک استحقاق رانا محمد ارشد اور دیگر کی جانب سے جمع کرائے گی۔ متن میں لکھا گیا کہ بعض اپوزیشن اراکین نے اسپیکر کی رولنگ اور اختیارات کو چیلنج کیا۔ ہنگامہ آرائی کرنے والے اپوزیشن اراکین نے پوری اسمبلی کا استحقاق مجروح کیا۔ حمزہ خورشید سے مزید جانتے ہیں، بتائیے حمزہ سے اس بارے اپڈیٹ لیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا معاملہ ہے، حکومتی اراکین نے اپوزیشن کے خلاف تحریک استحقاق جمع کروا دی ہے۔ تحریک استحقاق رانا محمد ارشد اور دیگر کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے۔ متن میں لکھا گیا کہ بعض اپوزیشن اراکین نے اسپیکر کی رولنگ اور اختیارات کو چیلنج کیا ہے۔ حمزہ خورشید سے مزید جانتے ہیں، بتائیے حمزہ۔ آج بالکل پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کرنے والے اپوزیشن اراکین کے خلاف حکومتی اراکین نے تحریک استحقاق جمع کرا دی ہے۔ تحریک استحقاق رانا محمد ارشد اور دیگر نے جمع کروائی، جبکہ اس کا متن کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس میں لکھا گیا کہ بعض اپوزیشن اراکین نے اسپیکر کی رولنگ اور اختیارات کو چیلنج کیا۔ ان اراکین نے ایوان کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالی۔ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی اپوزیشن اراکین نے پوری اسمبلی کا استحقاق مجروح کیا ہے۔ اپوزیشن اراکین نے غیر پارلیمانی، غیر مہذب اور توہین آمیز الفاظ استعمال کیے، جبکہ متن میں مزید لکھا گیا کہ ان اراکین نے ایوان میں دھکم پیل کی۔ اپوزیشن اراکین نے دھمکی آمیز حکومتی بینچوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، جبکہ متن میں مزید لکھا گیا ان اراکین نے ایجنڈے کی کاپیاں پڑھ کر حکومتی بینچوں کی طرف پھینک دیں۔ ہماری تحریک فوری کمیٹی کے سپرد کی جائے۔ جی آپ کا شکریہ۔ شاہدرہ ٹاؤن میں تیز رفتاری نے ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ کمسن ڈرائیور کی تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق، بھائی شدید زخمی۔ پولیس نے 14 سالہ حاشر کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ چکی ہے۔ شاہدرہ ٹاؤن میں تیز رفتاری نے ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ کمسن ڈرائیور کی تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق، بھائی شدید زخمی۔ پولیس نے 14 سالہ حاشر کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ زین علی سے مزید جانتے ہیں، بتائیے زین۔
जी बिल्कुल, शाहदरा में जो है वो गुज़िश्ता रोज़ कमसन ड्राइवर की जानिब से जो है 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचला गया था, जिसके नतीजे में एक शख्स जो है वो जाँ बहक हुआ था और 2 जो है वो ज़ख्मी हुए थे। कमसन कम उम्र ड्राइवर की जो है महाजिर के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुकदमा जो है वो हादसे में जाँ बहक होने वाले मलक नवीद के बड़े भाई की मुद्दत में दर्ज, मलक अमीन के बड़े भाई मलक नवीद की मुद्दत में जो है वो दर्ज किया गया। मुद्दई का कहना है कि मेरे दोनों भाई मलक अमीन और मलक फरीद जो है वो शाहदरा टाउन से कचहरी चौक की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान पीछे से कम उम्र ड्राइवर ने तेज रफ्तार गाड़ी के साथ उनको जो अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, जिसके नतीजे में आकर मलक फरीद जो है वो मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि मलक फरीद शदीद जख्मी है। जी आपका बहुत शुक्रिया। आईजी पंजाब का शाहदरा टाउन हादसे का नोटिस, डॉक्टर उस्मान अनवर का कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। आईजी पंजाब का मजीद कहना था कि कम उम्र ड्राइवर्स को हरगिज सड़कों पर न आने दिया जाए। सेफ सिटीज़ कैमरों की मदद से कमसिन ड्राइवर्स की निशानदही की जाए। मुदस्सिर हुसैन से मजीद जानते हैं। मुदस्सिर बताइए। जी बिल्कुल, शाहदरा के इलाके में गुज़िश्ता शब जो है वो कम उम्र ड्राइवर की वजह से एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसके नतीजे में जो है वो हलाकत सामने आई थी। इस वाक़े पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नोटिस लिया है और कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ सिटी हाउस में तमाम जो अफसरान हैं इनको क्रैकडाउन का हुक्म किया और इस वाक़े पर आईजी पंजाब ने अदारे बरमी भी किया है। आईजी पंजाब ने लाहौर में सूबे भर में कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ क्रैकडाउन को मजीद तेज करने का हुक्म दिया है। तो से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ये कहना है कि हादसा का मौजब बनने वाले कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया जाए, उनको हरकत जो है वो सड़कों पर जो है वो ना आने दिया जाए। सेफ सिटी कैमरों की मदद से खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब और कम से ड्राइवर की जो है वो निशानदेही की जाए। सड़कों पर जानी नुकसान का बाइस आपका शुक्रिया मुदस्सिर। कैंट के इलाके में बासर अफराद का 2 अफराद पर तशद्दुद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। तशद्दुद करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। मुलजिमान में मरकजी मुलजिम मुदस्सिर भट्टी, बाबर और इलाही भट्टी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने शहरी बिलाल और मुदस्सिर को अगवा करके इलाही भट्टी के डेरे पर तशद्दुद का निशाना बनाया है। ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुलजिमान की जानिब से शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। कैंट का इलाका है जहाँ बासर अफराद का 2 अफराद पर तशद्दुद है, जबकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। और इस एक्शन बारे आपको बताएं तो पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। मुलजिमान के बारे आपको बताएं तो इसमें मरकजी मुलजिम मुदस्सिर भट्टी, बाबर और इलाही भट्टी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने शहरी बिलाल और मुदस्सिर को अगवा करके इलाही भट्टी के डेरे पर तशद्दुद का निशाना बनाया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद बताइए। हाँ बिल्कुल उसामा, ये कैंट डिवीजन के इलाके में एक वाकया पेश आया जहाँ पर तशद्दुद का निशाना जो है कुछ बाश नौजवानों की जानिब से बनाया जाता रहा, जिस पर पुलिस ने जो सीसीटीवी मोबाइल फुटेज थी वो मंजर आम पर आने के बाद फौरी तौर पर एक्शन लिया, जिसके नतीजे में मुलजमान जो है वो पुलिस की जानिब से गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं और इन मुलजमान के खिलाफ मुकदमा जो है पुलिस की जानिब से वो भी दर्ज कर लिया गया है। एसपी कैंट के मुताबिक के मुर्गा बनाया गया कुछ अफराद की जानिब से, मुलजमान की जानिब से, और दूसरी जानिब इन पर तशद्दुद किया गया। और ये वीडियो जब वायरल हुई तो उसके बाद मुलजमान की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी आपका शुक्रिया मुजाहिद। टिकटॉकर सुजैन और निमरा का दोस्त के घर पर फायरिंग का केस, सेशन अदालत ने शरीक मुलजिम अहमद जावेद की अबूरी ज़मानत कल तक मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर ली। थाना हेयर में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। थाना हेयर में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। टिकटॉकर सुजैन और निमरा का दोस्त के घर पर फायरिंग का ये केस है। सेशन अदालत ने शरीक मुलजिम अहमद जावेद की अबूरी ज़मानत कल तक मंजूर कर ली है। अदालत ने पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। थाना हेयर में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मानसून में खस्ता हाल इमारतें इंसानी जानों के लिए ख़तरे की घंटी। अंदरून लाहौर समेत शहर के 9 टाउन्स में खस्ता हाल इमारतें मौजूद। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक शहर के 9 टाउन्स में 84 खस्ता हाल इमारतें मौजूद। दादागंज बख्श टाउन में 42, समनाबाद 13, शालामार 3 और रावीजूंस में 13 इमारतें ख़तरनाक हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान बताइए कि शहर के 9 टाउन्स में 84 खस्ता हाल इमारतें हैं, तो इन इमारतों में कितने फ़ीसद इमारतों में लोग रहायश पजीर हैं?
دیکھیں اسامہ، چونکہ مونسون کا سپیل جاری ہے اور مونسون کے ساتھ ساتھ جو ہے شہر میں محدود انتہائی خطرناک جو عمارتیں ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، اور اس والے سے شہر لاہور میں کہا گیا تھا کہ اس سال جو ہے تمام جتنی بھی محدود عمارتیں ہیں جو رہائشی ہیں، جہاں پہ کرایہ دار بھی رہ رہے ہیں، مالکانہ حقوق کے والے لوگ بھی رہ رہے ہیں، تو ان سے خالی کروا کر یا اپنی مدد آپ کے تحت بنائیں یا سرکار جو ہے ان کے ساتھ مل کر بنائے گی۔ اسی سلسلے میں سروے بھی کیا گیا تھا پچھلے سال، اور اس سال جو ہے کافی فرق بھی پڑا ہے کہ جو محدود عمارتیں ہیں ان کو ٹھیک بھی کروا دیا گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی شہر لاہور میں 84 جو ہے محدود عمارتیں موجود ہیں جہاں پر لاہور شہر میں لوگ جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں، اور رہائش پذیر ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس وقت مونسون کا سپیل جاری ہے اور بار بار جو ہے بارشوں کی وجہ سے الٹیمیٹم بھی دیے جا رہے ہیں، نوٹسز بھی جاری کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ رہائشی ہو، چاہے صنعتی ہو، انڈسٹریل ہو اور چاہے کمرشل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام جو ہے ٹائپس کے جو ہیں یہ 84 عمارتیں ہیں جہاں پر اس وقت کہیں پہ بھی کوئی عمارت گرنے کا خطرہ موجود ہے، رہائش پذیر لوگ بھی رہ رہے ہیں، مگر وہ ان کا شہریوں کا تو یہی کہنا ہے کہ اگر عمارت خالی کرتے ہیں تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں پہ جا کے کرائے کا گھر لے سکیں، مگر اس کے لیے وہ حکومت سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کو جو ہے وہ دوبارہ سے اس کی جو ہے تعمیر و بحالی کی جائے، مرمت کی جائے۔ مگر اس وقت شہر لاہور میں جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں مجموعی طور پر 84 غیر محفوظ عمارتیں ہیں، جس میں لاہور میں انتہائی غیر محفوظ 84 عمارتوں کے ساتھ ساتھ جو اس وقت محدود سرکاری عمارتوں کی تعداد 15، جبکہ لاہور میں غیر محفوظ پرائیویٹ عمارتوں کی تعداد 59 ہے۔ اسی طرح 68 غیر محفوظ عمارتیں گھریلو استعمال میں ہیں، جبکہ 16 صنعتی ہیں۔ اسی طرح مرمت و بحالی کے قابل نہ ہونے والی خطرناک عمارتوں کی تعداد 32 ہے۔ رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ قابل مرمت محدود عمارتوں کی تعداد 31 ہے، جبکہ 4 کو جو ہے ان کے فلور مسمار کرنے کے احکامات بھی دے دیے گئے ہیں۔ رہائش پذیر غیر محفوظ کی تعداد 53 ہے، جبکہ خالی غیر محفوظ عمارتوں کی تعداد 18 ہے۔ اسی طرح کرائے پر استعمال ہونے والی خطرناک عمارتوں کی تعداد 20 ہے۔ اسی طرح مالکانہ حیثیت پر محدود عمارتوں کی تعداد 46 اور 39 محدود عمارتوں کو خالی کروانے کے لیے فرسٹ نوٹس دیے گئے ہیں۔ اسی طرح 28 خطرناک عمارتوں کو خالی کروانے کے لیے دوسرے نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ متبادل جگہ نہ ہونے سے بیشتر جو ہے رہائشی جان جوکھم میں ڈال کر انہی عمارتوں میں ڈیرے ڈالنے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح مونسون کے پیش نظر حکومت کی طرف سے جو ہے وہ نوٹسز جاری بھی کیے گئے ہیں، اور ڈی سی لاہور کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو عمارتیں ہیں ان کو خالی کروانے کے حوالے سے ہے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر الٹیمیٹم بھی دیا جا رہا ہے، اشتہارات کے ذریعے بھی، اور بار بار جو ہے مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے اندرون شہر کی اگر بات کی جائے تو اندرون شہر میں اس وقت جو پچھلے سال کا جو سروے تھا اس میں 600 سے زائد محدود عمارتیں تھیں، جن میں سے 400 کو کور کر لیا گیا ہے۔ یہ اچھا جو ہے وہ اندرون شہر کی طرف سے وال سٹی اتھارٹی کی طرف سے اچھا انیشیٹو ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو وال سٹی ہے ان کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ وال سٹی میں گزشتہ سال 600 سے زائد خستہ حال عمارتیں موجود تھیں، جس میں سے 400 عمارتوں کو مکمل طور پر مرمت اور بحالی کیا جا چکا ہے، جس میں 130 عمارتیں وال سٹی نے اپنے وسائل سے، جبکہ 270 جو عمارتیں ہیں وہ مکینوں کے ساتھ مل کر ان کو تیار کروایا گیا ہے۔ اسی طرح وال سٹی کے اتھارٹی کے مطابق جو اب تک کی رپورٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سال ہمارے پاس 12 سے زائد انتہائی خطرناک عمارتیں ہیں جن کو خالی کروا دیا گیا ہے اس مونسون کے سپیل میں، اور جو باقی عمارتیں ہیں مونسون سیزن میں ان عمارتوں کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے، ایسا کہنا ہے ضلع انتظامیہ کا۔ 84 عمارتیں ہیں جس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ خستہ حال ہے۔ سول سروسز اکیڈمی لاہور میں اقلیتوں کے لیے نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کی افتتاحی تقریب، وفاقی وزیر آدم نذیر تارڑ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ شور کرانے کے لیے یہاں پہ موجود ہوں کہ ہمارے خالق نے، پاکستان کے خواب دیکھنے والوں نے، اور پھر فریمرز اور کانسٹیٹیوشن نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب نہیں، وہ حقیقت ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، اور مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اکثریت ہو یا اقلیت ہو، ایک ہی رشتہ ہے اور ایک ہی تعارف ہے، اور وہ تعارف ہے پاکستانی ہونے کا۔
جس طرح پہلے اس پروگرام کے بارے میں بتایا گیا اور جس کی ایک جھلک ہم نے اپنے ان دونوں خوبصورت میزبانوں میں تیرتھ میں اور آصفہ میں دیکھی، ہماری یہ خواہش ہے ہم سب کی بیٹا کہ آپ لوگ کل تیرتھ اور آصفہ کی جگہ پہ کھڑے ہوں، اور صرف یہیں پہ نہیں کھڑے ہوں بلکہ میں منتظمین کا، زیدی صاحب کا، ڈاکٹر صاحبہ کا، خواجہ صاحب کا شکر گزار اس لیے ہوں کہ آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے آپ نے ہمیں اس پاکستان کی طرف بھی نظر دوڑانے کا کہا ہے جو ہماری نظروں کا منتظر ہے۔ یہ پاکستان تو ہم روز دیکھتے ہیں، اس پاکستان کو تو شاید اتنی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ضرورت تو اس پاکستان کو ہے جو آپ نے آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہمیں دکھایا۔ بھٹا خشت کے مزدوروں کے پاس کس نے جانا ہے؟ تپتی دھوپ میں کام کرنے والے ریفائنریز کے ورکرز کی بات کس نے سننی ہے؟ کچی آبادیوں کے سکولوں کی طرف کس نے دیکھنا ہے؟ ابلتے گٹروں میں، گندی نالیوں میں کھیلتے ہوئے بچوں کو روشن مستقبل کس نے دینا ہے؟ یہ آپ کا، میرا، حکومت کا، ہر پاکستانی کا، ہم سب کا فرض ہے۔ اور میرے خیال میں سول سروسز اکیڈمی جس نے قوم کے معمار اور قوم کے خدمت گار پیدا کرنے ہیں، یہ وہ درسگاہ ہے جہاں سے یہ نور پھیلنا چاہیے، جہاں سے ایک مشن لے کے ہمارے بچوں اور بچیوں کو نکلنا چاہیے۔ گئے وہ دور جب ہم کلونیل سٹائل میں رول کرنے کا سوچتے تھے۔ پاکستان کو آج خدمت کرنے والوں کی ضرورت ہے، زخموں پہ مرہم رکھنے والوں کی ضرورت ہے، گلے لگانے والوں کی ضرورت ہے، نفرتیں نہیں محبتیں بانٹنے والوں کی ضرورت ہے، اور حکم نہیں گزارشیں کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں یہ پاکستان ہے جسے ہم سب نے مل کے بنانا ہے، اور اسی کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں خواجہ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آج مجھے زیادہ خوشی یہ ہے کہ اس ایونٹ کی مناسبت سے میں بطور وزیر انسانی حقوق آپ کے درمیان موجود ہوں، اور ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں، مختصر عرصے میں جو کچھ بن پایا وہ اپنے بھائی بہنوں کے لیے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نان مسلم کہا کریں، ڈاکٹر درشن دوسرے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ کو ہم نے مس کیا، آپ نہیں تھے۔ ہم نے بڑی لمبی، بہت لمبی ڈسکشن کے بعد جو نیشنل کمیشن ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، لیکن اس سے پہلے لاہور نیوز فٹافٹ۔ اور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 پر تعمیراتی کام کے آغاز میں واسطہ اور انتظامیہ تذبذب کا شکار، پنجاب حکومت کی واضح حکمت عملی تاحال سامنے نہ آ سکی۔ ایک طرف تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت، دوسری جانب مونسون میں نئی کھدائی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ واسطہ کی انتظامیہ تعمیراتی کام شروع کرنے کے لیے پالیسی کی منتظر۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں، بتائیے زین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت شہر کے مختلف علاقوں کا سیوریج اور واٹر سپلائی کا انفراسٹرکچر اپ گریڈ کرنے پر کام جاری ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 کا 80% تعمیراتی کام مکمل کیا جا چکا ہے، اور فیز 2 کا ابھی حال ہی میں پنجاب حکومت کے بجٹ میں منظوری دی گئی ہے۔ لیکن اس وقت پنجاب حکومت تذبذب کا شکار ہے کہ کیا لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر کام کا آغاز کیا جائے یا بارشوں کا انتظار کیا جائے۔ ایک طرف محکمہ ہاؤسنگ کی طرف سے اس امر کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ شہر لاہور میں مزید نئی کھدائیاں نہیں ہوں گی، تو دوسری طرف یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے فیز 2 پر تعمیراتی کام کا آغاز کیا جائے اور سیوریج اور واٹر سپلائی کا انفراسٹرکچر بچھانے کے لیے گہری کھدائیاں کی جائیں۔ تو اس وقت واسطہ انتظامیہ تذبذب کا شکار ہے۔ حال ہی میں پاس ہونے والے پنجاب حکومت کے بجٹ میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کے لیے واسطہ کو 19 ارب 55 کروڑ روپے کے منصوبہ جات کی منظوری دی گئی، اور 65 ترقیاتی منصوبے واہگہ زون، علامہ اقبال ٹاؤن زون، اس کے علاوہ رنگ روڈ اور ڈائمنڈ روڈ کے علاقوں میں مکمل کیے جانے ہیں۔ واہگہ زون پر ٹرنک سیور بچھانے کے لیے جو گہری کھدائیاں ہیں وہ کرنا ضروری ہیں۔ وزیر اعلیٰ آفس اور جو ہاؤسنگ
हाउसिंग डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से वासा को और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये अहकाम जारी किए जा रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो फेज 2 का जो सीवर सिस्टम है उसको अपग्रेड करने के लिए नया ट्रंक सीवर बिछा दिया जाए। तो इस तरह हुकूमती पॉलिसी वाजे ना होने की वजह से वासा इंतजामिया और अफसरान तजब्जुब का शिकार हैं कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 के तहत तामीराती काम कब शुरू किए जाएं। 1 जुलाई 2025 जैसे ही नया माली साल का आगाज हुआ तब से ही फंड्स का इजरा हो चुका है, लेकिन अभी तक लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 पर बाकायदा तौर पर जो तामीराती काम है उसका आगाज नहीं हुआ। जो सीवर पाइपलाइन है और जो दीगर मोबिलाइजेशन है उसको साइट पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी तक गहरी खुदाइयां नहीं हो पा रही। इस तरह अगर जो एलडीपी फेज 2 की तामीराती काम फिलफोर शुरू ना किया गया तो उसकी वजह से जो मंसूबा है वो मुतासिर होगा, और अगर इस वक्त गहरी खुदाइयां कर दी जाती हैं तो जो लोग हैं उनकी जिंदगियों के ऊपर जो खतरात हैं वो मंडलाना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह एलडीपी फेज 2 के हवाले से कोई फैसला ना करने की वजह से पंजाब हुकूमत और महकमा हाउसिंग एक बंद गली में फंस चुका है। आपका शुक्रिया जैन। शहर लाहौर में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। बादलों की मौजूदगी के बावजूद हब्स की कैफियत बरकरार। ज़्यादा टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेश गोई है। सुहेल कैसर से मज़ीद जानते हैं, बताइए सुहेल। देखें, अगर इस वक्त लाहौर के मौसम की बात की जाए तो कदरे बेहतर है। सुबह के औकात में तो अच्छी खासी हब्स की कैफियत इम्तिहान ले रही थी, लेकिन अब अच्छी रफ्तार से हवा चल रही है। आसमान पर बादल भी नज़र आ रहे हैं और इसकी वजह ये बनी है कि महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि शहर के शुमाल की तरफ से एक सिस्टम लाहौर की तरफ प्रिवेल कर रहा है, और अगर वो लाहौर तक अप्रोच करने में कामयाब हो गया तो फिर पूरे लाहौर में अच्छी बारिश की तवक्को रखी जा सकती है। और अगर हवा का रुख कहीं तब्दील हो गया तो मुमकिन तौर पर फिर ज़्यादा इम्कानात इस बात के हैं कि शादरा, बादामी बाग, अंदरून शहर और इनसे मुल्हिका जो दीगर इलाके हैं बारिश का सिलसिला वहीं तक महदूद रहेगा। और इसके साथ साथ PDMA की तरफ से भी ये अलर्ट जारी किया गया है कि जो मुल्क के बड़े दरिया हैं उनके बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला चल रहा है। इसके नतीजे में दरियाओं में कुछ पानी के बहाव में इजाफ़ा हो सकता है, और साथ ही साथ डीजी खान डिवीज़न में जो रोदकोहियाँ हैं, सैलाबी नाले हैं, वहाँ पर भी पानी का बहाव जो है उसमें काफ़ी इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि कहीं से कोई सैलाब की कैफियत की इत्तला नहीं मिली। इसी तनाजुर में शहरियों से ये कहा गया है जी कि वो एहतियाती तदबीर ज़रूर इख्तियार करें। किसी भी सूरत सैलाबी नदी नाले के या दरिया के करीब मत जाएं। अपने मवेशियों को भी वहाँ पर नहलाने के लिए लेकर ना जाएं, क्योंकि किसी भी वक्त सूरत हाल कुछ गड़बड़ भी कर सकती है। ये मौसम की आज की सूरत हाल और आइंदा आने वाले दिनों की सूरत हाल। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आज लाहौर में जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी, आपका शुक्रिया सोहेल। डीजी इंस्पेक्शन पब्लिक प्रोसिक्यूशन अतर मसूद का तबादला। मोहम्मद अतर मसूद को डीजी लीगल एड एजेंसी पब्लिक प्रोसिक्यूशन पंजाब तैनात कर दिया गया। OSD फरीद अहमद को डीजी इंस्पेक्शन पब्लिक प्रोसिक्यूशन लगा दिया गया। ब्यूरो चीफ हसन रजा से मजीद जानते हैं। हसन, बताइए तकर्रुर तबादलों बारे। पंजाब हुकूमत ने 2 करार के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी किए हैं। मोहम्मद अतर मसूद जो कि डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट तैनात है, इनका तबादला करते हुए इनको डायरेक्टर जनरल लीगल एड एजेंसी पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के अहदे पर तैनात कर दिया है। फरीद अहमद जो कि OSD थे, इनको फरीद अहमद को डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के अहदे पर तैनात कर दिया है। सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला की मंजूरी के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अहकाम पर महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपका शुक्रिया हसन। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन का फैसला। PP 201 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद यार की अपील पर 16 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। आज़ाद उम्मीदवार के लीगी उम्मीदवार नवीद असलम के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन बहाल कर देगी। मुस्तरदशुदा अपील बहाल करते हुए वकला को मज़ीद कार्रवाई के लिए आइंदा समात पर तलब कर लिया। समात 26 अगस्त तक
मुलतवी कर दी गई है। समाअत को 26 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस इनवार हुसैन का फैसला है। फैसले की कॉपी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बताएं कि PP 201 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद यार की अपील पर 16 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया गया। आज़ाद उम्मीदवार की लीगी उम्मीदवार नवीद असलम के ख़िलाफ़ इलेक्शन पटिशन बहाल कर दी गई। मुस्तशुदा अपील बहाल करते हुए वकला को मज़ीद कार्रवाई के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। वकला को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया गया है। समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत को 26 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस इनवार हुसैन का बड़ा फैसला है। PP 201 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद यार की अपील पर 16 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी। आज़ाद उम्मीदवार की लीगी उम्मीदवार नवीद असलम के ख़िलाफ़ इलेक्शन पटिशन बहाल कर दी गई है। मुस्तशुदा अपील बहाल करते हुए वकला को मज़ीद कार्रवाई के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। लाहौर से इस्तांबुल जाने वाली टर्किश एयरलाइन की परवाज़ से परिंदा टकरा गया। परवाज़ के टेक ऑफ के दौरान रनवे पर परिंदा टकराया। मुसाफिर को ऑफलोड करके तैयारे की इंस्पेक्शन का आगाज़ कर दिया गया है। तैयारे की इंस्पेक्शन का आगाज़ कर दिया गया है। लाहौर से इस्तांबुल जाने वाली टर्किश एयरलाइन की परवाज़ से परिंदा टकरा गया। परवाज़ के टेक ऑफ के दौरान रनवे पर परिंदा टकराया। मुसाफिरों को ऑफलोड करके तैयारे की इंस्पेक्शन का आगाज़ कर दिया गया है। इंजीनियर्स की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद ही तैयारा टेक ऑफ करेगा। लाहौर से इस्तांबुल जाने वाली टर्किश एयरलाइन की परवाज़ से परिंदा टकरा गया है। परवाज़ के टेक ऑफ के दौरान रनवे पर परिंदा टकराया और अब सूरत हाल ये है कि इंस्पेक्शन का आगाज़ कर दिया गया है। इंजीनियर्स की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद ही तैयारे की रवानगी का फ़ैसला किया जाएगा। लाहौर से इस्तांबुल जाने वाली टर्किश एयरलाइन है जिससे परिंदा टकरा गया है। सामे सईद से मज़ीद जानते हैं। सामे बताइए। सामे अगर सुन पा रही तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल उसामा, लाहौर से इस्तांबुल जाने वाली तुर्किश एयर की परवाज से परिंदा टकरा गया है। परवाज के टेक ऑफ के दौरान रनवे पर परिंदा टकराया। मुसाफिरों को तैयारे से ऑफलोड करके इंजीनियर्स की जानिब से तैयारे की इंस्पेक्शन शुरू कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि इंजीनियर्स की जानिब से इजाजत मिलने के बाद ही तैयारे की रवानगी का फैसला किया जाएगा। जी आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए कुछ बात करते हैं दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई की। सब्जी और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे का सिलसिला जारी। प्याज 70, टमाटर 100, लहसुन 350, अदरक 580 रुपये किलो फ़रोख्त, टिंडे 460, बैंगन 150, करेले 160, भिंडी 200 रुपये किलो। कई रोज़ के इजाफे के बाद मुर्गिया गोश्त 15 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 475 रुपये। अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 249 रुपये बरकरार। तफसीलात अब्दुल कादिर से जानते हैं। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी रेलिस्टों का इजरा किया गया है सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के, तो बज़ाहिर तौर पर जो फल हैं उनकी कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। इसी तरह सब्जियों की कीमतें भी जो है मुस्तहकम रखी गई हैं। लेकिन मार्केट में इस वक्त सूरत हाल ये है कि प्याज जो है वो 50 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेलिस में है। दर्जा अव्वल के प्याज की कीमत है, लेकिन मार्केट में यही दर्जा अव्वल का प्याज 70 से 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर 65 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का मेयारी टमाटर 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन 260 के बरक 350 रुपये और अदरक 480 के बरक 580 से 600 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और मौसमी सब्जियों की सूरत हाल भी यही है कि रेल इसमें कीमतें कुछ और हैं और मार्केट में शहरियों से कुछ और वसूल की जा रही हैं। फलों के हवाले से बात की जाए तो फल जो हैं उसमें सेब काला कुल्लू 440 रुपये है, मार्केट में 600 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 200 रुपये फ़ी दर्जन है, मार्केट में 230 से 240 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। आड़ू 300 रुपये है सरकारी रेलिस में, लेकिन मार्केट में 350 से 360 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ब्रायलर की कीमत में आज 15 रुपये की कमी की गई है और 475 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमत 249 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है, लेकिन मार्केट में अंडे जो हैं 270 से 280 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं जो ख़रीदारी के लिए आए, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि मार्केट में जो सब्जियां, फल और ब्रायलर क्या सूरत हाल? सर जी आज जो सा है ना, वैसे ही कल छुट्टी थी, ठीक है आपको पता है। आज दुकानें खुली हैं, माल कम है। आज समझ लें रेट ज़्यादा है हर चीज़। वो कह रहे पीछे मंडी में माल नहीं आया, ठीक है। इसी तरह फल भी है, फल भी महंगा बिक रहा है, सब्जियां भी महंगी बिक रही हैं। रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं बिक रहा। वो कह रहे हैं हमें पीछे से नहीं मिलता रेट लिस्ट के मुताबिक, तो हम कैसे दें। बहरहाल महंगाई में जो सा ना इजाफा है, बहुत ज़्यादा इजाफा है। जी बिल्कुल, आपने जो है वो सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि जो रेल लिस्ट हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा और रेल लिस्टों से महंगी सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत मार्केट में फ़रोख्त की जा रही हैं। जी आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर का गिरा फरोशों के खिलाफ आनी हाथों से निपटने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद के लिए फील्ड में मुतहर्रिक। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। इमरान बताइए। इमरान से इस बारे अपडेट लेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद के लिए मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का गिरा फरोशों के खिलाफ आनी हाथों से निपटने का हुक्म है। इस तरह के अहकाम तो दिए जाते हैं, लेकिन आवाम ग्राउंड पर इस हवाले से रिलीफ हासिल करने से कासिर हैं। पीसीबी का 2025-26 सीज़न का डोमेस्टिक कैलेंडर जारी। सीज़न का आगाज़ 15 अगस्त से हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी से होगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी 22 सितंबर से 7 नवंबर तक खेली जाएगी। कौमी T20 टूर्नामेंट यकुम से 12 मार्च तक फैसलाबाद में होगा। मोहम्मद उसामा से मज़ीद जानते हैं। बताइए उसामा। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया डोमेस्टिक कैलेंडर जारी कर दिया है और इसी के मुताबिक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 22 सितंबर से 7 नवंबर तक खेली जाएगी। सीजन का आगाज 15 अगस्त से हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी से होगा। कौमी T20 टूर्नामेंट यकम से 12 मार्च तक फैसलाबाद में होगा। अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 रीजनल टूर्नामेंट भी शेड्यूल का हिस्सा है। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी 12 टीमें शामिल होंगी। मैचेस कोयटा और कराची में होंगे। इस तरह हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी की टॉप 2 टीमें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 8 टीमें शामिल होंगी। 29 मैचेस पर मुश्तमिल लीग फॉर्मेट होगा और इस तरह कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस इस्लामाबाद और रावलपिंडी में होंगे। नेशनल T20 के लिए कौमी क्वालिफाइड राउंड भी मुतारिफ करवा दिया गया है। नेशनल T20 क्वालिफाइड में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। टॉप 2 टीम जो है वो सुपर 10 में क्वालिफाई करेंगी। इस तरह सुपर 10 बदले में 8 टीमें बराह रास्त शामिल होंगी। कराची वाइट्स, लाहौर वाइट्स, पिशावर, कराची ब्लूज और सियालकोट, इस्लामाबाद, फैसलाबाद शामिल होंगी। 4 डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट भी सीजन का हिस्सा होंगे। प्रेसिडेंट ट्रॉफी, प्रेसिडेंट कप और ग्रेड 2 और ग्रेड 3 होंगे। 2025-26 में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मेरिट और मौके और मुकाबले की बुनियाद पर किए गए हैं। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुनैरा नसीर का कहना है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और नेशनल T20 क्वालिफाइड का निजाम शामिल किया गया है। आपका शुक्रिया। ज़िला इंतज़ामिया का तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर एक्शन। शहर की अहम शाहराहों से तजावुज़ात का सफाया कर दिया गया। 72 घंटों में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन में 91 ट्रक सामान जब्त किया गया। मॉल रोड, शादमान, जोहर टाउन, ग्वाल मंडी और अतराफ में तजावुज़ात का खात्मा किया गया। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और आपको बता रहे हैं कि मॉल रोड, शादमान, जोहर टाउन और मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। इमरान बताइए। इमरान से इस बारे अपडेट लेंगे। 72 घंटों में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन किया गया है। मॉल रोड, शादमान, जोहर टाउन, ग्वाल मंडी और अतराफ में ये ऑपरेशन किया गया है। आपको बताएं कि सामान कब्ज़े में लिया गया है, जबकि शहर की अहम शाहराहों से तजावुज़ात का सफाया कर दिया गया है। इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन में 91 ट्रक सामान जब्त किया गया है। मॉल रोड, शादमान, जोहर टाउन, ग्वाल मंडी और अतराफ में तजावुज़ात के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया है और इस हवाले से मनाज़र भी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शहर की अहम शाहराहों से तजावुज़ात का सफाया कर दिया गया है। और इस हवाले से आपको ये बताएं तो 91 ट्रक सामान जब्त किया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान बताइए। इमरान अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। पढ़ाने से कन्नी कतराने वालों की पकड़। अरसा दराज से इंतजामी पोस्टों पर तैनात असातिज़ा को हटाने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला भिजवा दिया। 3 साल से ज़्यादा इंतजामी पोस्टों पर तैनात असातिज़ा को फौरी तौर पर स्कूलों में तैनात करने का हुक्म। आतिफ परवेज़ से मज़ीद जानते हैं। बताइए आतिफ। आतिफ से इस बारे अपडेट लेंगे। पढ़ाने से कन्नी कतराने वालों की पकड़। अरसा दराज से इंतजामी पोस्टों पर तैनात असातिज़ा को हटाने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटी को मरासला भिजवा दिया है। 3 साल से ज़्यादा इंतजामी पोस्टों पर तैनात असातिज़ा को फौरी तौर पर स्कूलों में तैनात करने का हुक्म जारी किया गया है। आपको बता रहे हैं 3 साल से ज़्यादा इंतजामी पोस्टों पर तैनात असातिज़ा को वापस स्कूलों में भेजने का फ़ैसला किया गया है। अरसा दराज से इंतजामी पोस्टों पर तैनात असातिज़ा को हटाने का फ़ैसला है। इस फैसले बारे मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज़ से। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, एजुकेशन अथॉरिटीज़ में असातिज़ा जो है खासे अरसे से इंतजामी पोस्टों पर मौजूद है और उनका पढ़ाने से जो है वो ड्यूटी जो उसकी निभाने की कोशिश नहीं कर रहे थे और उसे जान छुड़ा रहे थे। अब महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि इन असातिज़ा को फौरी तौर पर इन पोस्टों से हटाया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मरासला जारी किया है जिसमें कहा गया है कि डीओ, डिप्टी डीओज की सीटों पर तैनात 3 साल से तैनात जो असातिज़ा है इनको फौरी तौर पर स्कूलों में भिजवाया जाएगा। मरासले में कहा गया है कि ग्रेड 16 के जो
असातिज़ा हैं उनको फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ही स्कूलों में भिजवाएगी, जबकि ग्रेड 17 और उससे ऊपर के जो असातिज़ा हैं उनकी पोस्टिंग के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन को लिखा जाएगा। तो सैकड़ों असातिज़ा इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज में इंतजामी पोस्टों पर मौजूद थे और दूसरी तरफ स्कूलों में असातिज़ा की शॉर्टेज थे। इस सारे को देखते हुए अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने ये रास्ता जारी किया है और ये कहा है कि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद भी किया जाए। जी आपका शुक्रिया। मुहर्रम हराम में ज़ायरीन तक सेहतबख्श लंगर की फराहमी का मिशन। फूड सेफ्टी टीमों की पंजाब भर में चेकिंग। 555 पकवान सेंटर को 75,62,000 के जुर्माने। 2 पकवान सेंटर बंद किए गए। 196 लीटर नाकिस मशरूबात, 210 किलो तैयार खाना और बासी अज्जा भी तल्फ कर दी गए। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मजीद जानते हैं, बताइए इमरान। देखिए मुहर्रम हराम का एहतराम था और इस वजह से अकीदत में बख्श स्वाम की फराहमी का मिशन भी जारी रखा गया, जिसमें वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों ने सुबह भर में चेकिंग की, जिसमें सुबह भर में 5,809 पकवान सेंटर, न्याज, लंगर खानों और सिविलों की चेकिंग की गई, जिसमें 555 पकवान सेंटर्स को 75,62,000 के जुर्माने आयद किए गए। 2 पकवान सेंटर्स को बंद किया गया। चेकिंग के दौरान 196 लीटर नाकिस मशरूबात और 210 किलो तैयार खाने और बाकी अज़ा भी तलब किए गए। 1,170 पॉइंट्स को सलाही नोटिस जारी किए गए और 3,755 को फूड सेफ्टी की आगाही दी गई। इस वाले से लॉर्ड डिवीजन में 619, फैसलाबाद में 1,174, साहिवाल में 320, रावलपिंडी में 811, गुजरात डिवीजन में 830, सरगोदा में 543, भावलपुर में 418, मुल्तान में 469, जबकि डीजी खान में 625 पॉइंट्स चेक किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी आसिफ जवेद का कहना है कि न्याज, लंगरखानों और इसके साथ साथ पकवान सेंटर्स में वर्कर्स को जो ग्लोव्स मुफ्त तस्लीम किए गए, जबकि नाकिस बासी अज़ा बरामद होने पर 2 पकवान सेंटर्स बंद किए गए। प्रोडक्शन एरियाज में नाकिस इंतजामात पाए गए। मजालिस और महाफिल और सड़कों पर तस्लीम किए जाने वाली न्याज और लंगर की कड़ी निगरानी की गई। इसी सिलसिले में वज़ीर पंजाब के हुक्म पर मुकद्दस अय्याम में सुबह भर में फूड सेफ्टी टीमों को सेफ्टी जो को यकीनी बनाने के लिए तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद रहे। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि तमाम इजला में इंतजामिया। आपका शुक्रिया इमरान। महकमा सेहत की 74 लेडी हेल्थ विजिटर और आया की मुस्तकिली की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार वकील को केस की तैयारी के लिए मोहलत दे दी। अदालत ने समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में महकमा सेहत की 74 लेडी हेल्थ विजिटर और आया की मुस्तकिली की दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को मजीद तैयारी की मोहलत देते हुए कार्रवाई 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने मेमूना नवाज समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें यह कहा गया कि लेडी हेल्थ विजिटर और आया की भर्ती के लिए अखबार इश्तिहार दिया गया। दरख्वास्त गुजारों को मेरिट पर रेगुलर असामियों पर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया और कॉन्ट्रैक्ट में वक्तन फवक्तन तोसी करते रहे हैं, लेकिन दरख्वास्त गुजार ने यह कहा कि दरख्वास्तें देने के बावजूद भी दरख्वास्त गुजारों को ताहाल मुलाजमत पर मुस्तकिल नहीं किया गया। लिहाजा अदालत दरख्वास्त गुजारों को मुस्तकिल करने का हुक्म दे और फैसले और दरख्वास्त के हतमी फैसले तक तदीबी कार्रवाई से भी रोका जाए। आपका शुक्रिया। CCPO का बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर ऑफिसर और जवानों को खराज तहसीन। अमन कमेटियों, उलमा कराम, लाइसेंस होल्डर्स, रज़ाकारान और मुंतज़मीन से इजहार तशक्कुर। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानते हैं। मुदस्सिर बताइए। जी बिल्कुल, शुरा मुहर्रम पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम करने लाहौर में अफसरान और जवानों को जो है शाबाश की है। शुरा मुहर्रम के दौरान 52 पर अमन कमेटियों, उलमा कराम, लाइसेंस होल्डर और रज़ाकारों और मुंतज़मीन से भी लाहौर ने इजहार शिकर किया है। तो वैसे लाहौर बलास लीग मैंने का ये कहना है कि सिक्योरिटी मुताबिक पुलिस से तावन पर अहले लाहौर और अजराय अबलाग के मेहनों का भी जो है वो काबिल तहसीन कर रहा है। तमाम अदालत की मुस्तक़िल काबश और मेहनत से शुरा मुहर्रम जो है वो पुलिस के अफसरान और जवान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शब रोज़ फील्ड में खिदमत अंजाम देते रहेंगे। तो मज़ीद कहना था कि लाहौर पुलिस के तमाम यूनिट्स ने शानदार टीम वर्क से शुरा मुहर्रम को पुरअमन इनकाद को यकीनी बनाया। जिन इंतजामिया समेत तमाम मुतल्लिक़ा अदालतों के साथ टीम के तौर पर जो है वो काम किया। तमाम स्टेक होल्डर का लाहौर ने जो है वो शुक्रिया अदा किया। आपका शुक्रिया।
محکمہ اسکول ایجوکیشن کی سنگین غفلت سامنے آ گئی. اسکولوں کے لیے فنڈز تو مختص کر دیے گئے مگر ترقیاتی منصوبوں کی تصدیق نہ کروائی گئی. اکثر ایجوکیشن اتھارٹیز کی ڈیمانڈ مسترد نہ نکلی. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ترقیاتی منصوبوں کی تصدیق کے لیے کمیٹیاں بنا دی. کمیٹیاں بھجوائی گئی ڈیمانڈ کی دوبارہ سے تصدیق کریں گی. فنڈز کا اجرا تصدیق سے مشروط کر دیا گیا ہے. محکمہ اسکول ایجوکیشن کی سنگین غفلت بارے آپ کو بتائیں تو اسکولوں کے لیے فنڈز تو مختص کر دیے گئے مگر ترقیاتی منصوبوں کی تصدیق نہیں کروائی گئی. اکثر ایجوکیشن اتھارٹیز کی ڈیمانڈ مسترد نہیں نکلی. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ترقیاتی منصوبے کی تصدیق کے لیے کمیٹیاں بنا دی. کمیٹیاں بھجوائی گئی ڈیمانڈ کو دوبارہ سے تصدیق کریں گی. فنڈز کا اجرا تصدیق سے مشروط. ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب کا محرم الحرام کے جلوسوں کے دوران بہترین انتظامات پر فورس کو شاباش. وقاص نذیر کا کہنا تھا کہ ٹریفک کے 12,000 سے زائد آفیسر اور جوانوں نے فرائض سر انجام دیے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب کا محرم الحرام کے جلوسوں کے دوران بہترین انتظامات پر فورس کو شاباش. مدثر حسین سے مزید جانتے ہیں. بتائیے مدثر. جی بالکل، ڈی جی ٹریفک پنجاب نے محرم الحرام کے جلوسوں کے دوران ٹریفک کے بہترین انتظامات کرنے پر تمام افسران اور فورس کو شاباش دی ہے. تمام سی ٹی اوز اور ڈی ٹی اوز نے محرم الحرام کے دوران پنجاب بھر میں ٹریفک کے بہترین انتظامات کیے. محرم الحرام کے دوران ٹریفک پولیس کے 12,000 زیادہ افسران اور جوانوں نے محرم الحرام میں اپنے فرائض سر انجام دیے. محرم الحرام کے جلوس اور مدارس کے باہر پارکنگ کے بہترین انتظامات کیے گئے. محرم الحرام کے دوران شہریوں کو فل پروف ٹریفک انتظامات فراہم کیے گئے. اس وجہ سے ڈی جی ٹریفک وقاص کا یہ کہنا ہے کہ کانسٹیبل سے لے کر سینئر افسران تک تمام شہریوں کی ضرورت کے لیے سڑکوں پر موجود رہے. تمام فورس نے موسم کی سختی اور تبدیلی کے باوجود اپنے فرائض جو ہے وہ بہتر طریقے سے انجام دیے. جوانوں نے بہترین حکمت عملی، محنت اور ٹیم ورک سے ٹریفک کی روانی اور سیکورٹی کو ایسے طریقے سے برقرار رکھا. ٹریفک پلان کو یقینی بنانے پر زائرین، عزداروں اور شہریوں کے بھی ڈی جی ٹریفک آپ کا بہت شکریہ. دورہ بنگلہ دیش سے پہلے قومی ٹیم کو دھچکا. امریکہ میں جاری میجر لیگ میں فاسٹ بالر ہارس روف انجری کا شکار. ٹیم سان فرانسسکو یونارکز نے ہارس روف کے لیگ سے باہر ہونے کی تصدیق کر دی. ہارس روف کے فوری طور پر قومی ٹیم میں شمولیت کے امکانات کم ہو گئے. محمد اسامہ سے مزید جانتے ہیں. بتائیے اسامہ. اسامہ اگر سن پا رہے ہیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے. بالکل، پاکستان کا دورہ بنگلہ دیش کے لیے قومی T20 اسکواڈ کا اعلان آج ہونے کا امکان ہے. اسی طرح نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیے جانے کا امکان ہے. سابق کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان کی ذرائع کے مطابق جگہ بنتی ہوئی مشکل نظر آ رہی ہے. ڈومیسٹک کرکٹ اور لاسٹ سیریز میں پرفارم کرنے والے کھلاڑیوں کو موقع دیے جانے کا امکان ہے. اس طرح پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کا آغاز 20 جولائی کو ہوگا. 20، 22 اور 24 جولائی کو 3 میچز شیڈیول کیے گئے ہیں اور قومی ٹیم نے جو ہے وہ 16 جولائی کو روانہ ہونا ہے، جس کے لیے قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ بھی کراچی میں لگایا جائے گا. اس طرح ٹیم کا اعلان آج ہونے کی توقع کی جا رہی ہے. جی آپ کا بہت شکریہ.